فدا ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، ماحول ایسا آپ نے بنا دیا ہے ڈوما پارا والوں، لگ رہا ہے تقریر نہیں مجھے شعر ہی پڑھنا پڑے گا۔ نہیں ایسا نہ کیجئے، کیونکہ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا چینل لگا ہے، 2 دن کے بعد پوری دنیا دیکھے گی، یوٹیوب پر آئے گا، منظر عام پر آئے گا، پوری دنیا دیکھے گی۔ بعد میں مجھ سے سوال ہوں گے، فون آئے گا کہ آپ نعت ہی پڑھ رہے تھے، وہاں جانے کے بعد پیغام کیا دیا ہے؟ تو کچھ باتیں بھی سماعت کرتے چلے۔ بس اس بچے کے حوالے 2 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد تقریر سنیے۔ مسکرا کر کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فدائے مصطفیٰ سنیں کہ ہر کام غلاموں کا سرکار بناتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر کام غلاموں کا سرکار بناتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو انجمن فدائے مصطفیٰ کے جتنے بھی نوجوان کمیٹی کے بچے ہیں کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ ہر کام غلاموں کا سرکار بناتے ہیں، ہر کام غلاموں کا سرکار بناتے ہیں، ہر کام غلاموں کا سرکار بناتے ہیں۔ ایک بار بگڑتا ہے، ایک بار بگڑتا ہے، 100 بار بناتے ہیں۔ ایک بار بگڑتا ہے، 100 بار بناتے ہیں۔ ایک بار بگڑتا ہے، 100 بار بناتے ہیں۔ اور ملتا نہیں دنیا میں وہ ہتھیار بناتے ہیں، ملتا نہیں دنیا میں وہ ہتھیار بناتے ہیں۔ لکڑی کو میرے آقا، لکڑی کو میرے آقا تلوار بناتے ہیں، لکڑی کو میرے آقا تلوار بناتے ہیں۔ آؤ آؤ شورا ہو گیا، جیلان میں یہ شورا ہو گیا۔ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ تشریف لایا ہے جو آتے ہی اپنے لب پر روزہ رکھ لیا، جو آتے ہی ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہے، جو آتے ہی کسی کھانے یا پینے کی چیز کو منہ تک نہیں لگا رہا ہے۔ اب پورے جیلان میں یہ شورا ہوا تو پتہ چلا قصبے جیلان میں اسی دن اللہ رب العزت نے 1100 بچوں کو پیدا فرمایا تھا۔ کتنے؟ 1100 بچوں کو، سب لڑکے تھے، 1100 بچوں کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کے صدقے سے ان 1100 بچوں کو ولی بنا دیا۔ یہ شان ہے سرکار غوث اعظم کی، جن کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ یہ ہے شان میرے سرکار غوث اعظم کی۔ آؤ دیکھو الغرض سرکار غوث اعظم کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنے قریب رکھتے، محبت سے پالتے۔ جانتے ہیں آپ سرکار غوث اعظم کے والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ بنت جبار اپنے آنکھوں سے ایک وقت، اپنی آنکھوں سے ایک وقت بھی اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ وقت آ گیا جب سرکار غوث اعظم کی عمر شریف، اگر میں ایک سال ایک مہینہ بتاؤں گا بہت ٹائم ہو جائے گا، اور شارٹ میں لے کر چلتے ہیں۔ جب سرکار غوث اعظم کی عمر شریف کتنی ہوئی؟ 5 سال 4 ماہ 5 دن کی ہوئی، اس وقت حضرت ابو صالح کا وصال ہو چکا تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنے قبر میں آرام کر رہے تھے۔ کس وقت؟ جس وقت سرکار غوث اعظم کی عمر شریف 5 سال 4 مہینہ 5 دن کی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے پوری ذمہ داری اپنے کاندھے پر لے لی۔ لینے کے بعد آپ اپنے بیٹے کو مدرسے میں لے کر جاتی ہیں۔ سنیں اے ڈوما پارا والوں، تم نے بھی پڑھا ہوگا، آج ہم ہیں اپنے بچوں کو علم دین سے دور رکھتے ہیں، مگر آؤ دیکھو سرکار غوث اعظم کی والدہ ہیں، آپ کے شوہر کا وصال ہو چکا ہے، غوث اعظم کے والد گرامی کا وصال ہو چکا ہے، ذمہ داری بیٹے کی تربیت کے کاندھے پر ہے۔ آپ مدرسہ لے کر جاتی ہیں، مدرسہ
मदरसे में जाने के बाद, उस्ताद से मिलने के बाद आप फरमाती हैं मेरे इस बच्चे को पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाओ कि हाफिज कुरान बना दो, ऐसा पढ़ाओ आलिम दीन बना दो। अलगरज उस्ताद गिरामी हैं और अपने हजरत अब्दुल कादिर हुजूर सरकार गौसे आजम को बैठा लेते हैं। माँ खड़ी हुई है, कह दो सुभान अल्लाह। आज तक हमने ये सोचा कि अपने बच्चे को मदरसे लेकर जाएं, हमारे सामने उस्ताद पढ़ाएं और हम देखें, फुर्सत ही नहीं मिलती है, टाइम ही नहीं मिलता है, इतने बड़े बिजनेस में रहते हैं। आखिर कब तक दूसरों के बोझ कांधे पर रख के अपने टाइगर हाथ में रखोगे? कब तक दूसरों के सहारे रहोगे? कब तक ये सोचते रहोगे कि हाफिज तालिब साहब आ जाएं या हाफिज इरफान साहब आ जाएं तो हमारे घर में फातिया हो जाए? कब तक ऐसा माहौल बनाकर रखोगे? कब तक दूसरों के सहारे इस तरह चलता रहेगा काम? कभी तुमने सोचा कि हम भी अपने एक बच्चे को दीन के नाम पर निकाल दें, दीन के नाम पर निकाल दें, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना लें? वरना याद रखो तुम्हारे जनाजे रखे रह जाएंगे। इंतजार होगा कि हाफिज तालिब साहब आए, हाफिज इरफान साहब आए, जब आपके वालिद का जनाजा पढ़ाया जाए। आओ देखो, बाप का साया सर से उठ चुका है। हजरत उम्मुल खैर फातिमा बिनते जब्बार का सुहाग उजड़ चुका है। हजरत अबू साले का विसाल हो गया है। मदरसे में गई, उस्ताद गिरामी मेरे बच्चे को पढ़ाइए। उस्ताद गिरामी ने बच्चे को बैठा लिया। कौन बच्चा? ऐसा वैसा बच्चा नहीं, वो बच्चा कि पहले जब तशरीफ नहीं लाया था बगदाद में, मेरे मुस्तफा ने पहले बता दिया था कि बगदाद की जमीन पर अब्दुल कादिर जिलानी आएगा और फरमाएगा मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खोल कर बता दूं? वक्त नहीं है, बोले तो खोल कर बता दूं। आका अलैहिस्सलातु सलाम एक रोज अपने बेटी के घर हजरत फातिमा के घर जाते हैं। सुभान अल्लाह। तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला पैकर शर्मो हया हजरत फातिमा तो ज़हरा के घर गए और जाने के बाद क्या देखा? एक तरफ हजरत फातिमा है, एक तरफ मौला अली है, एक तरफ इमाम हसन है, एक तरफ इमाम हुसैन है। अब नबी दाखिल हुए तो क्या मामला आया? नबी जब दाखिल हुए तो 5 पंजतन बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी दाखिल हुए 5 पंजतन बन गया। हमें यह यूं कह लिया जाए कि अगर फैल जाए पूरी दुनिया में तो पूरी दुनिया बन जाए, कायनात बन जाए, अगर समिट जाए तो 5 पंजतन बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद हमेशा प्यार इमाम हुसैन से करते रहे, आज प्यार कर रहे हैं इमाम हसन से। इमाम हसन के माथे को बोसा दे रहे हैं, रुखसार को बोसा दे रहे हैं, होठों को बोसा दे रहे हैं, सीने को भी चूम रहे हैं। हजरत फातिमा ने अर्ज किया बाबा आखिर मामला क्या है? छोटे तो हुसैन हैं, आपको प्यार हुसैन से करना चाहिए, छोटे तो हुसैन हैं, आपको हुसैन से मोहब्बत करनी चाहिए, मगर आज आप इमाम हसन से क्यों कर रहे हैं? नबी फरमाते फातिमा जब मैं घर में दाखिल हुआ इमाम हुसैन के चेहरे को देखा, कुछ ना नजर आया। इमाम हसन के चेहरे को देखा तो इमाम हसन की पेशानी पर एक नूर नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नूर नजर आया। अर्ज करती बाबा नूर? आप फरमाते हाँ बेटी नूर नजर आया। बाबा क्या कैसा नूर था? कौन सा नूर था? मेरे मुस्तफा फरमाते ए बेटी सुनो, हुसैन की नस्ल पाक से इमाम तशरीफ लाएंगे, मेरे इमाम हसन के नस्ल से एक ऐसा अल्लाह का वली तशरीफ लाएगा जो 9 इमाम की मोहब्बत अकेले सीने में लेकर आएगा। दुनिया उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अंजुमन हुसैनिया, अंजुमन हुसैनिया, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। तभी तो हम आशिक़े रसूल सब मिलकर कहते हैं, आज हम कोई बात होती है तो कहते हैं या गौसल मदद, कहते कि नहीं? कहते हैं। और अगर आज कह दे तो इमदाद गौसे
आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद, इतना बोल सकते हैं, इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे। सुन लीजिए सुन लीजिए अब हमारी फरियाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम। हंसती है मुझ पे दुनिया हंसता है ये ज़माना हंसता है ये ज़माना। कोई पुकारे पागल कोई कहे दीवाना कोई कहे दीवाना। मेरी जिंदगी की ये है रुदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे। और ये शेर बतौर खास अंजुमन फिदाए मुस्तफ़ा जो कमेटी के बच्चे हैं उनके हवाले से, क्योंकि इतना मेहनत करके ये महफिल को सजाया है कि उनके दिल की तमन्ना क्या है वो मुलाज़ा फरमा ले। इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम। आ जाओ पीरे पीरा आ जाओ पीरे पीरा अब कुटिया जगमगा दो अब कुटिया जगमगा दो। आ जाओ पीरे पीरा अब कुटिया जगमगा दो अब कुटिया जगमगा दो। है इश्क मेरा साचा दुनिया को ये बता दो दुनिया को ये बता दो। क्या तेरे आशिक ने किया है तुझे याद गौसे आजम इमदाद 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 गौसे आजम। शेर बहुत है पर आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ उसके बाद तकरीर फिर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। शेर मुलादा फरमाए। ये बच्चे छोटे छोटे गौसे आजम के नाम पर बोल रहे हैं इमदाद गौसे आजम। मुलादा फरमाए। इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम। दिन रात तेरे चर्चे करते हैं मेरे बाचे करते हैं मेरे बाचे। दिन रात तेरे चर्चे करते हैं मेरे बाचे करते हैं मेरे बाचे। आठों पहर लाबों पर रहते हैं तेरे नारे रहते हैं तेरे नारे। तेरे शैदाई है मेरी औलाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं छोड़े नहीं छोड़े नहीं छोड़े नहीं छोड़े। जिंदाबाद या अली अल्लाहु अकबर
یا رسول اللہ ماشاء قسم اللہ خدا کی یہ بچہ تو مجھے بار بار پن کر رہا ہے کہ میں پڑھتا رہوں انجمن فدائے مصطفیٰ کے نام سے ہر کلام، مگر خطاب بھی آپ تک کچھ میسج بھی پہنچانا ہے کہ نہیں؟ باقی یہ بچہ تو اتنا چڑھا رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ نعت ہی پڑھتا رہوں، اور وہ یہ بھی سوچ بھی رہا ہے، کیونکہ الحمدللہ کمیٹی کا ایسا نام ہے انجمن فدائے مصطفیٰ، ایسا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ پولاد کا دل، بس ایک شعر بس اس بچے کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد خطاب سنیں۔ فولاد کا دل پاتھر کا جگر، فولاد کا دل پاتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے نعرہ لگایا تھا، لاسٹ میں کہا تھا نعرہ حیدری۔ سنیں، اس بات کو یاد رکھیں، مولا کائنات کا جہاں نعرہ لگ جاتا ہے قسم خدا کی ہر سنی تڑپنے لگتا ہے۔ فولاد کا دل پاتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے۔ فولاد کا دل پاتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے۔ جب نام علی کا لیتے ہیں، جب نام علی کا لیتے ہیں، میدان ہمارا ہوتا ہے۔ جب نام علی کا لیتے ہیں، میدان ہمارا ہوتا ہے۔ آؤ دیکھو، غوث اعظم کی ماں ہے، استاد گرامی کے سامنے حضرت غوث اعظم کو کر دیا، استاد گرامی میرے بچے کو پڑھائیے، حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ سرکار غوث اعظم ہے، دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد استاد گرامی ہے، اب پڑھا رہے ہیں، استاد گرامی کہتے ہیں بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار غوث اعظم 5 سال 4 ماہ 5 دن کی عمر شریف ہے، آپ فرماتے ہیں استاد گرامی پہلے تعوذ و تسمیہ تو پڑھا دو، اعوذ باللہ بسم اللہ تو پڑھا دو۔ استاد گرامی سوچنے لگے پہلی بار مدرسے میں بچہ آیا ہے، اتنا ذہین ہے، پہلی بار مدرسے میں پڑھنے آیا ہے، اتنا اچھا ذہن ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروعات ہوتی ہے، تعوذ و تسمیہ سے شروعات ہوتی ہے۔ الغرض استاد گرامی نے پڑھایا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد گرامی نے پڑھایا سرکار غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، محی الدین جیلانی، پیروں کے پیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم ہے۔ اب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ پہلا پارہ پڑھ دیا، دوسرا پارہ پڑھ دیا، تیسرا پارہ پڑھ دیا، 10واں پارہ پڑھ دیا، 15واں پارہ پڑھ دیا، 16واں پارہ پڑھ دیا، 17 پارہ پڑھ گئے۔ جب 18 پارہ پڑھتے ہیں استاد گرامی کہتے بیٹا آخر معاملہ کیا ہے؟ کہیں سے تعلیم لے کر آئے ہو؟ نہیں کہیں سے لے کر نہیں آیا ہو۔ کہیں پہلے پڑھ کے آئے ہو؟ نہیں کہیں سے پڑھ کر نہیں آیا ہو۔ بیٹا 18 پارے بغیر دیکھے تم نے کیسے پڑھ دیا؟ آپ فرماتے سنو، میری ماں بہنیں بھی یہاں پر حاضر ہیں، وہ بھی غور سے سنیں، میرے نوجوان بھائی بھی موجود ہیں، وہ بھی غور سے سنیں۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں معاملہ کچھ اور نہیں ہے، میں نے مکتب میں کہیں تعلیم نہیں لی ہے، میری ماں 18 پارے کی حافظہ ماں تھی۔ میری ماں جب کوئی کام کرتی قرآن کی تلاوت کرتی، جھاڑو لگاتی قرآن کی تلاوت کرتی، برتن کو مانتی قرآن کی تلاوت کرتی، کھانا پکاتی قرآن کی تلاوت کرتی، کپڑے کو دھوتی قرآن کی تلاوت کرتی، گھر کی صاف صفائی کرتی قرآن کی تلاوت کرتی۔ میری ماں قرآن پڑھتی جاتی، میں قرآن ماں کے پیٹ میں رہ کر اس قرآن کو سنتا تھا۔ اتنے آسانی سے مجھے 18 پارے حافظ ہو گئے۔ استاد گرامی ماں کو 18 پارے یاد تھے، اس لیے میں 18 پارے کا حافظ ہوں۔ اگر میری ماں پورے قرآن کی حافظہ ہوتی تو یہ عبد القادر ماں کی پیٹ جائے پورے قرآن کا حافظ پیدا ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مگر آج ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟
آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اگر لڑکا شکم میں آیا، لڑکا پیٹ میں آیا، لیڈ لگ گئی، کیا کرے؟ ٹائم پاس نہیں ہوتا، کہیں غزل چلتی ہے، کہیں گانے کھرے پھات فلمی ڈرامہ چلتے ہیں۔ جب بتاؤ، جب شکم میں بیٹا آ جاتا ہے، آج بھی یوروپ کے اندر یہ سسٹم ہے، اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو ABCD لکھتی ہے کاغذ پر، اسے پڑھتی رہتی ہے پورا دن، روز پورا دن لکھتی ہے، روز اسی کو پڑھتی ہے۔ کیوں؟ جانتی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ بیٹا پیٹ میں آتا ہے، اسے اللہ کان سماعت کرنے کے لیے عطا کر دیتا ہے۔ ماں کی ہر حرکت پر اس کی نظر رہتی ہے۔ یوروپ والے آج بھی کرتے ہیں، آج ہماری ماں بہنیں ہیں۔ آج بتاؤ اے لوگوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، سچ بتانا، ہمارا معاشرہ ماحول ہے کہ نہیں؟ آج بیٹا پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر ادھر ادھر دیکھنے لگا، ہاتھ پیر اس کا کام کرنے لگا تو موبائل پکڑا دیا جاتا ہے۔ پکڑایا جاتے کہ نہیں؟ یا تو گیم دکھایا جاتا ہے یا تو گانے بیہودے سنائے جاتے ہیں۔ وہ بڑا ہو کر ماں باپ کو کیوں نہ نچائے گا؟ پھر بڑا ہو کر کیوں نہ ماں باپ کو نچائے گا؟ کیونکہ جب سے شکم میں آیا ماں کے، پیٹ میں آیا ماں کے، تب سے تو اس کو ناچ گانا دکھانا شروع کر دیا تم لوگوں نے، یا ہم لوگوں نے کہہ دیجئے۔ یہ معاشرہ ماحول ہمارا ہے کہ نہیں؟ اور کاش کے سرکار غوث اعظم کی والدہ جیسا اگر معاملہ ہم کرتے، ان کے نقش قدم پر چلتے اور یہ کہتے اپنے بچوں کو، کبھی بھی اگر بچہ پیٹ میں ہوتا تو ہمیشہ بس کچھ اور نہیں، بس اتنا کہتے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا کہتے کہتے، ارے کھلے آنکھ سلے کہتے کہتے۔ اگر کاش کہ یہ کردار و کریکٹر ہم اپنا لیتے تو پھر وہ دن دور نہ ہوتا، کیونکہ جب ماں ام الخیر فاطمہ بنت جبار ہوگی تو بیٹا غوث اعظم جیسا پیدا ہوگا۔ ماں اگر ماہ نور فاطمہ ہوگی تو بیٹا غریب نواز جیسا پیدا ہوگا۔ ماں اگر فاطمہ تو زہرا ہوگی تو بیٹا امام حسن و حسین جیسا پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر کردار و کریکٹر ہم اپناتے کیا ہیں؟ ابھی سنیں بس کان سے غیب، فارمیلٹی تو ہم ادا کر لیتے ہیں، نعرے ہم بہت لگا لیتے ہیں، فیروز حبیبی کی کچھ باتیں تو کڑوی لگیں گی، مگر دعا کرتا ہوں کہ اللہ لگ جائے کڑوی، دل میں اگر لگ گئی تو یہ محفل کا سجانا، ہمارا یہاں آنا، آپ کا یہاں بیٹھ کر سننا سب قبول ہو جائے گا۔ ایک بھی بندہ کی کوئی بھی نبی کی شریعت کو فالو کر لیا، اپنا لیا، قسم خدا کی ہمارے اس کے صدقے ہماری بھی تھوڑی سی کشتی جو بیچ بھور میں ہے وہ کنارے تک پہنچ جائے گی۔ آئیں دیکھیں، سرکار غوث اعظم فرماتے میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی، اگر پورے پارے کی حافظہ ہوتی، پورے قرآن کی حافظہ ہوتی تو میں بھی پورا قرآن پڑھ کر ماں کی پیٹ سے ہی تولد ہوتا۔ الغرض حضرات گرامی آپ پڑھتے رہے، وقت گزرتا رہا، جب سرکار غوث اعظم کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی، سنیں گے اسے سلام پڑھ لیا جائے یار، 10 منٹ کو میں نے کہا تھا، 10 منٹ کے لیے میں نے کہا تھا، پھر اس کے بعد میں نے بولا ہی نہیں، بس 5-10 منٹ۔ ماشاءاللہ اچھا لگے، اللہ کرے سب کو اچھا لگے، اور سب کو سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پر اللہ توفیق و رفیق عطا فرمائے کہ اسی نقش قدم پر آپ بھی چلیں۔ ملاحظہ فرما لیں، میرے زندگی کے رہے بڑے پیر غوث اعظم، میری زندگی کے رہے پہ، کتنی عمر شریف ہے سرکار غوث اعظم کی؟ 6 سال۔ بس اس کو ذہن میں رکھیں، میرے زندگی کے رہے پہ بڑے پیر غوث اعظم، میرے زندگی کے رہے پہ، میرے زندگی کے رہے پر میرے زندگی کے رہے پر بڑے پیر غوث اعظم،
आजम, नहीं कोई तुमसे बेहतर, नहीं कोई तुमसे बेहतर, बड़े पीर गौसे आजम, नहीं कोई तुमसे बेहतर, बड़े पीर गौसे आजम। शेर बहुत, एक शेर और समाप्त कर ले। मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे आस्था पे जाकर, मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे आस्था पे जाकर, रहूं बन के तेरा नौकर, रहूं बन के तेरा नौकर, सरकार गौसे आज़म, रहूं बन के तेरा नौकर, सरकार गौसे आज़म, मेरे जिंदगी के रहे दे, सरकार गौसे आज़म। आओ आओ, गौसे आज़म की उम्र शरीफ 6 साल की हो चुकी है। आप अपनी वालदा की बारगाह में जाते हैं। यार मजमे में इंतशार न पैदा करें, ज़हन को हाजिर रखिए। अगर सुनना है तो सरकार गौसे आज़म की वालदा गिरामी आप अपने घर पर हैं। सरकार गौसे आज़म बारगाह वालदा में हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा? अम्मी जान आपकी बारगाह में आए। सुने, तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कुछ बात समझा कर चला जाऊं। किरदारों कैरेक्टर देखे सरकार गौसे आज़म का, जिनकी हम 11वीं शरीफ मनाते हैं, वो गौसे आज़म कैसे हैं, उनका किरदारों कैरेक्टर क्या है वो देख लें। सरकार गौसे आज़म अम्मी जान से अर्ज करते हैं, प्यारी अम्मी जान, आज एक अरीजा आपकी बारगाह में लेकर आया हूं। सुनो नौजवानों, आज तुम भी किसी माँ के लाल हो कि नहीं, मगर जवान हो गए हो, अकड़ के बोलते हो। कुरान क्या कहता है माँ बाप की शान में? वबिल वालिदैनि हिसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। जब वो बुजुर्गी के पहुंच जाए उनको झिड़को नहीं, उफ तक न कहो। सबसे हल्का अल्फाज उफ तक। मगर हम बार बार यही कहते हैं, अरे बार बार कोई काम होता हम ही से कहते हैं, अपने दूसरे बेटे से कह दो। ऐसा अल्फाज निकालते कि नहीं? माँ कहती है बेटा यहाँ, कहते बोल देते, थोड़ी देर बाद आते। बोलते हैं कि नहीं? बोलते कि नहीं? कुरान ने कैद लगाया कि उफ तक न कहो, माँ बाप की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद न करो। आओ देखो सरकार गौसे आज़म किस तरह से माँ से, ऐ माँ आपकी बारगाह में अरीजा लेकर आया हूँ, एक तमन्ना लेकर आया हूँ, एक ख्वाहिश लेकर आया हूँ, एक आरजू लेकर आया हूँ। ए बेटा अब्दुल कादिर क्या मामला है? माँ बात ऐसी है कि आज मैंने सुना है कि हमारे गांव से, हमारे कस्बे से, हमारे मोहल्ले से, हमारे बस्ती से एक हाजियों का काफिला जाने वाला है, हाजियों का काफिला जाने वाला है। ए अम्मी अगर आप इजाजत दे दें तो मैं भी हाजियों के काफिले में शरीक हो जाऊं, थोड़ी दूर तक उन्हें छोड़कर आ जाऊं। ए अम्मी जान थोड़ी दूर मैं भेजना चाहता हूं। ए अम्मी जान मैं उन हुज्जाजे कराम को देखना चाहता हूं जो आंखें गुंबदे खजरा को देखने वाली हैं, जो हाथ गिलाफे काबा को छूने वाले हैं, जो पैर काबे का तवाफ करने वाले हैं। ए अम्मी जान आप इजाजत दीजिए। माँ ने कहा बेटा अब्दुल कादिर शिद्दत की गर्मी है, कड़ाके की धूप है, धूप की तपिश को बर्दाश्त न कर सकोगे। अर्ज करते अम्मी जान हुज्जाजे कराम का काफिला है, हाजियों का काफिला है। परवरदिगारे आलम इस मुकद्दस महफिल के सदके इस गांव में जितने मोमिन भाई हैं गौसे आजम के सदके तमामी लोगों को हाजी बना दे। अर्ज करते हैं सरकार गौसे आजम, ए अम्मी जान इजाजत दीजिए। आपकी वालदा फरमाती है बेटा अब्दुल कादिर ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो घर के छत पर चढ़ जाओ, उन हाजियों को देख लो जो आंखें गुंबदे खजरा को देखने वाली हैं, उन हाथ को देख लो जो गिलाफा काबा को पकड़ने वाले हैं, उन होठ को देख लो जो संगे असवद को बोसा देने वाले हैं, उन पैर को देख लो जो खाने काबा का तवाफ करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आजम जिद नहीं कर रहे, मां से छत पर जाते हैं। जाने के बाद अब किसको देख रहे हैं? जो काफिला जाने वाला है। कहां जाने वाला है? माशाअल्लाह भाई, अगर इंजन कमजोर हो जाएगा तो मामला नहीं चलेगा, क्योंकि बोगी मजबूत है। किनको देखने जा रहे हैं?
हुज्जाजे कराम के काफिले को, उन आंखों को जो गुंबदे खजरा देखने वाली है, उन होठ को जो संगे असवद का बोसा देने वाले हैं, उन हाथ को जो गिलाफे काबा पकड़ने वाले हैं, उन पैर को जो खाने काबा का तवाफ करने वाले हैं। और देखना भी चाहिए, कभी वो मौका आए आपके गांव से कोई हज के लिए जाए तो थोड़ी दूर भेजना चाहिए, थोड़ी देर उन्हें विदा करना चाहिए। क्यों? आशिक रसूल कहता है कि देखना इबादत है, चूमना इबादत है, देखना इबादत है, चूमना इबादत है। आशिक मदीना को भेजना इबादत है, आशिक मदीना को भेजना इबादत है। सरकार गौसे आजम है, ऊपर छत में चढ़ जाते हैं, हुज्जाजे कराम का काफिला आ रहा है, हाजियों का काफिला गुजर रहा है। सरकार गौसे आजम है, उन हाजियों के काफिले वालों को वो देख रहे हैं, हर एक शख्स के पर निगाह जा रही है। एक बाद दीगरे जब वो धीरे धीरे करके काफिला आपके आंखों से ओझल हो गया, दूर हो गया, नहीं नजर आ रहा है, तो सरकार गौसे आजम है अपने छत पर दीवार के टेका लगाकर बैठ जाते हैं, आराम करने लगते हैं। आपकी जाहिरी आंखें बंद हो जाती है, दिल की दुनिया बेदार हो जाती है। माँ ने सोचा अब्दुल कादिर अभी छत से नीचे नहीं आए, आखिर मामला क्या है। आप छत पर जाती हैं, जब आप छत पर गई मामला अपोजिट पाया, जब आप छत पर गई मामला अलग पाया, जब आप छत पर गई मामला बरअक्स पाया। आप क्या देखती हैं? मेरा बेटा अब्दुल कादिर हुज्जाजे कराम के काफिले के वालों की जियारत करने के लिए आया था। हाजी जो काफिले में जा रहे थे उनके चेहरे को देखने आया था, मगर क्या देखती है? हजरत गौसे आजम दीवार के टेके से आराम कर रहे हैं और खाने काबा सरकार गौसे आजम का चक्कर लगा रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, नारे हैदरी। सरकार गौसे आजम का तवाफ कर रहा है। आपकी वालदा ने देखा बरेली की सरजमीन पर बैठकर टूटी हुई चटाई पर कातिए कुफ्र ज़लालत, माहिए बिदअत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में कलम को बुलंद करते हैं, इसके नबी में डूब कर शेर लिखते हैं कि सारे अख्ताब जहां कहते हैं काबे का तवाफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अख्ताब जहां कहते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अख्ताब जहां कहते हैं काबे का तवाफ। अरे काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा। वहाँ क्या मर्तबा से बाला तेरा। ये सरकार गौसे आजम है। आपकी जिंदगी देखो, आपकी जिंदगी देखो तो कसम खुदा की ऐसा लगेगा कि सरकार गौसे आजम की जिंदगी एक हमारे लिए ऐसा नमूना है। अगर हम अमल कर लें, अगर हम उस पर अमल पैरा हो जाएं, कसम खुदा की हमारी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी, हमारी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। सरकार गौसे आजम उस जात का नाम है। अदात गिरामी, अगर मैं आपको बचपना ही बताता रहा तो कसम खुदा की पूरा टाइम निकल जाएगा। आओ देखो, आपकी वालदा है, आपकी वालदा सरकार गौसे आजम के नाना जान के यहाँ लेकर चली जाती हैं, और नाना जान के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। सुने, शेख अब्दुल्ला सुमई के यहाँ लेकर चली जाती हैं।
अब जितना प्यार था बच्चों का हजरत अब्दुल्ला सुमई शेख अब्दुल कादिर पर लुटाने लगे। एक बुढ़ापे का सहारा बना लिया कि मेरा ये नाती मेरा सहारा बन गया। वो हजरत अब्दुल्ला सुमई भी अल्लाह के वली, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ये भी अल्लाह के वली। अब एक वली दूसरे वली के साए में रहने लगा। अब जब साए में रहने लगा, सरकार गौसे आजम बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। सुने, सरकार गौसे आजम बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। एक औरत आई जिसके पास आपके नाना जान, सरकार गौसे आजम के नाना जान के पास, हजरत अब्दुल्ला सुमई के पास आई। हुजूर मैं आपकी बारगाह में आई हूँ। किस लिए आई हो? हुजूर मेरी 6 लड़कियां घर पर हैं, मुझसे 6 लड़की पैदा हो चुकी है, 7वां मेरे पेट में पल रहा है। मुझे ये नहीं मालूम लड़का है कि लड़की है। मेरे शौहर ने धमकी दी है कि अगर आपकी लड़की पैदा हुई हाथ पैर कर तलाक दे के तुझे तेरे घर भेज दूंगा, मायके भेज दूंगा। हुजूर बताइए लड़की है कि लड़का है? लड़की है कि लड़का है? अल्लाह के वलियों को, अल्लाह अपने वलियों को वो ताकत और कुव्वत देकर दुनिया में भेजता है कि अगर वो जमीन पर रहे और अगर देखना चाहे तो 7 जमीन नीचे 33 सरा पर नजर रहती है। अगर आसमान की तरफ नजर उठा ले तो 7 आसमान ऊपर लौहे महफूज पर नजर हुआ करती है। आपने थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर दिया, आंखों को खोला। आप फरमाते ए औरत तेरे पेट में जो पल रहा है वो भी लड़की है। इतना सुनना था, औरत ज़ारो कतार रोने लगी। अल्लाह अकबर, रोते हुए बाहर आई। सरकार गौसे आजम का बचपना है। आपने देखा औरत रोते हुए आ रही है। आपने पूछा खातून क्या मामला है? तू तो रोते हुए गई थी। ये चौखट वो है मेरे नाना जान की जो रोते हुए जाता है, हंसता हुआ वापस आता है, जो खाली दामन को लेकर जाता है वो भर के मुरादे लाता है। ये औरत तू रोती हुई गई फिर रोती हुई आई, बात समझ में नहीं आई। उस औरत ने कहा ए बच्चे हमें परेशान मत करो, ए बच्चे हमें परेशान न करो। आप फरमाते हैं हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं कि हमारे घर में जानवरों का रोना भी देखा नहीं जाता, जानवरों का रोना भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो नाना मुस्तफा की उम्मत के आंसुओं को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? खातून बता तो सही। ए बच्चे क्यों मजाक करते हो? ए बच्चे हमसे मजाक न करो। आप फरमाते मैं मजाक नहीं करता, तू काम बता, इंशाअल्लाह तेरा काम का हल मिल जाएगा। खातून पूरी बात बताती है। मेरे घर में 6 लड़की मुझसे तवल्लुद हो चुकी है, 7वां मेरे पेट में था। आपकी नाना जान की बारगाह में आई थी कि बता दो लड़का है कि लड़की है। आपके नाना जान ने बता दिया लड़की है। मेरे शौहर ने कहा था अगर लड़की पैदा हुई तेरा हाथ पैर तोड़ के तुझे मायके तलाक देकर भेज दूंगा। एक बच्चे बता अब मैं क्या करूं? आप फरमाते हैं ए औरत तुझे मांगने का ढंग नहीं आया, ए औरत तुझे मांगने का ढंग नहीं आया। जा नाना जान की बारगाह में और जाकर कहना कि जो हकीम जो डॉक्टर अगर मर्ज बताता है तो उसकी दवा भी करता है, उसकी दवा भी जानता है। औरत गई, जाने के बाद जैसे ही गई हजरत अब्दुल्ला सुमई ने फरमाया औरत मैंने तुझे बाहर भेजा था, तू फिर आ गई। हुजूर बात ऐसी है कि जो डॉक्टर मर्ज जानता है उसकी दवा करना भी जानता है। आप फरमाते हैं कि मैं मर्ज बता दिया, तूने पूछा है इसलिए दवा नहीं करूंगा, निकल जा। औरत बाहर आई, जैसे ही बाहर आई दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा सरकार गौसे आजम बचपने का आलम है। आप फरमाते फिर अंदर जा। यार बड़ा सन्नाटा है। फिर अंदर जा। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा ए खातून तुझे भेजने वाला कौन है? बार बार मेरे पास लाने वाला कौन है? नन्ही सी उम्र है सरकार गौसे आजम की, छोटी सी उम्र है सरकार गौसे आजम की। अलगरज खातून ने हाथ को पकड़ा, सामने कर दिया। सामने करना था। आपके नाना जान हजरत अब्दुल्ला सुमई ने एक छड़ी को लिया, लेने के बाद आप दौड़ाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ अल्लाह का वली भाग रहा है, एक तरफ अल्लाह का वली भगा
रहा है। आगे अल्लाह का वली, पीछे भी अल्लाह का वली। एक अल्लाह का वली है कि नाना जान मारने वाले हैं, एक अल्लाह का वली है कि आज अब्दुल कादिर को मैं सबक सिखा दूंगा। अलगरज भागते रहे, एक तरफ अल्लाह का वली, दूसरी तरफ भी अल्लाह का वली, भागने वाला भी अल्लाह का वली और भगाने वाला भी अल्लाह का वली। अनकरीब था कि हजरत अब्दुल्ला सुमई हजरत गौस आजम के जिस्म मुबारक पर अपनी छड़ी को छुआ दे, उतने में आपने टर्निंग ली, मुड़ना शुरू किया, कब्रिस्तान में घुस जाते हैं। और जब कब्रिस्तान में गए तो आवाज देते हैं, ए कब्रिस्तानों के मुर्दों, उठो उठो, नाना अब्दुल्ला सुमई आ रहे हैं। हमें इतना कहना था, जितने कब्रिस्तान के मुर्दे थे सब भागने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मामला अलग हो गया। अभी तक अल्लाह का वली आगे, पीछे भी अल्लाह का वली। अब मामला अलग है, आगे अल्लाह का वली है, बीच में कब्रिस्तान के सब मुर्दे दौड़ रहे हैं, पीछे अल्लाह के वली है, आगे हुजूर गौसे आजम है, बीच में तमाम मुर्दे हैं, पीछे हजरत अब्दुल्ला सुमई है। अब दौड़ा रहे हैं, अब दौड़ा रहे हैं, अब दौड़ा रहे हैं। अलगरज हजरत अब्दुल्ला सुमई फरमाते हैं, ए बेटा, ए नवासे अब्दुल कादिर, तुम्हें मालूम नहीं है, अभी इन लोगों को उठाया ना जाएगा जब तक कि कयामत न आएगी। आप अर्ज करते हैं, नाना जान, कयामत जब तक नहीं आएगी बेशक नहीं उठाया जाएगा, मगर ए नाना जान, आप वादा करो कि आप अब्दुल कादिर को छड़ी नहीं छुआओगे। अगर आप वादा कर दो तो मैं इनको जहां जहां से उठा के लाया हूं सबको वापस कर सकता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको वापस कर सकता हूं, इतना कहना था। आप फरमाते, ए अब्दुल कादिर नहीं मारूंगा, अब्दुल कादिर नहीं मारूंगा। आप फरमाते, कब्रिस्तान के मुर्दों, जाओ अपनी अपनी कब्रों में, ये नाना जान का हुक्म है और नाना जान ने मुझे कह दिया है, नाना जान ने मुझे कह दिया है, मैंने तुमको सुना दिया है, जाओ अपनी कब्र में। इतना कहना था। पूरे मुर्दे जो उठे थे आपके साथ भाग रहे थे। रावी का कहना है, कलमकार राइटर पूरी जिम्मेदारी के साथ लिख रहा है कि सरकार गौसे आजम ने जैसे ही फरमाया जाओ अपने कब्रों में, सबके सब मुर्दे कब्र में चले गए। आशिक रसूल तड़प जाता है, अर्ज करता है कि मैंने तुम्हें पुकारा, हम सब ने तुम्हें पुकारा, हम सब ने तुम्हें पुकारा, सरकार गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। सब ने तुम्हें पुकारा, सरकार गौसे आजम। हम सब ने तुम्हें पुकारा, सरकार गौसे आजम। दे दीजिए सहारा, सरकार गौसे आजम। दे दीजिए सहारा, सरकार गौसे आजम। और जिसके लिए मैंने ये कलाम को पढ़ा है, अब वो शेर समाप्त कर ले कि जिंदे को मुर्दा करना, जिंदे को मुर्दा करना, मुर्दों को जिंदा करना, जिंदों को मुर्दा करना, मुर्दों को जिंदा करना। अजब खेल है तुम्हारा, सरकार गौसे आजम। अजब खेल। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, या अली। आओ देखो, सरकार गौसे आजम है। तमाम के तमाम कब्रिस्तान के मुर्दे अपने अपने कब्र में चले गए। जब कब्र में गए, आपके नाना करीब आते हैं। सरकार गौसे आजम भी करीब पहुंचे। अलगरज एकदम करीब गए। नाना ने नवासे को सीने से लगाया। लगाने के बाद आप फरमाते हैं, ए नवासे, आप क्या चाहते हो? नाना जो अता कर दे, नाना जो आप कह दे, आप अगर आप कह देंगे वो उस पर हुक्म पर आपका नवासा अमल करेगा। ए नाना, आप जो कहेंगे वही पर आपका नवासा अमल करेगा। हजरत अब्दुल्ला
सुमई फरमाते हैं, ए बेटे, ए नवासे, जा ये इख्तियार मैं तुझे देता हूँ, इस खातून का मुकदमा तेरे हवाले करता हूँ, अब जो मर्जी तेरी हो उसे पूरा फरमा दे। आप फरमाते, खातून मैंने कहा था कि हम उस घराने से ताल्लुक रखते, कभी झूठ नहीं बोलते, उस घराने से ताल्लुक रखते हैं, कभी मजाक नहीं करते। ये खातून तुझे लग रहा था आ नाना जान ने मुकदमा मुझे दे दिया है, बता तेरे घर पर कितनी लड़कियां हैं? अर्ज की हुजूर 6। आप फरमाते हैं 6, एक को बेटा बना दिया, 2 को बेटा बना दिया, 3 को बेटा बना दिया, 4 को बेटा बना दिया, 5 को बेटा बना दिया, 6 को बेटा बना दिया, बस हो गया अरमान पूरे। हुजूर एक पेट में है, वो भी लड़की है। आप फरमाते वो भी लड़की है, मैंने उसको भी बेटा बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। खातून परेशान, अभी बच्चा, ऐसा बच्चा और पेट में भी इतना पावरफुल वाला, उसे यकीन नहीं। आप फरमाते यकीन नहीं है, प्रैक्टिकल और थ्योरी देखना है, जा अपने घर चली जा, अपने घर जा, तुझे बात समझ में आ जाएगी। खातून ने लंबे कदम से कदमों को बढ़ाया, बढ़ाते हुए घर गई। अभी उसे यकीन नहीं था कि एक बच्चे ने ऐसी करामत कर दिखाई है। अलगरज दरवाजे पर दस्तक देती है, बेटियों खोलो दरवाजा, दरवाजा खोला जाता है, छइयो बेटी सामने आती है, पर अब बेटी नहीं, छइयो बेटे हैं और आवाज देते हैं, अम्मी जान अभी तक आपने बेटी कहा तो कहा है, अब ना बेटी कहना, इसलिए कि जहां तुम गई थी उस बच्चे ने ऐसा कर्म कर दिया कि हम सब बेटी से बेटा हो गए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अंजुमन हुसैनिया, अंजुमन हुसैनिया, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये है सरकार गौसे आजम, ये है सरकार गौसे आजम जिनको हम चाहते हैं, जिनकी महफिल में हम बैठे हुए हैं, जिनसे हम अकीदत रखते हैं। ये सरकार गौसे आजम है कि बचपने का आलम है। आपने ऐसी करामत दिखा दी कि जो घर में 6 हैं उनको भी बेटा बना दिया, पेट में जो है उसको भी बेटा बना दिया। ये रब अपने वली को ये इख्तियार और पावर दे के रखता है। आओ देखो, अलगरज में बचपना बयान करूंगा तो सारी रात इसी में गुजर जाएगी। आओ कुछ जवानी भी समाप्त कर लो, कुछ करामतें भी सुन लो। सुनोगे? सलाम पढ़ा दिया जाए, सुनेंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखे सरकार गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज़ मकानी मोहिउद्दीन जिलानी की उम्र शरीफ जब जिलान में 18 साल की हुई। कितनी? 18 साल की। आपने वाकया सुना होगा। फिर आप पढ़ने के लिए बगदाद गए, सुना है ना वाकया? और आगे पहुंचू क्योंकि ये वाकया तो सुना हुआ है। 40 डाकुओं ने हमदान से आगे जब काफिला पहुंचा था तो डाकुओं ने आपके काफिले वालों पर हमला कर दिया था। आपने सुना होगा 40 असरफियों वाला वाकया, सुना है ना? इसके बाद सरकार गौसे आजम कहां पहुंचे? बगदाद शरीफ। किस लिए? पढ़ने के लिए। क्यों पहुंचे थे? एक रोज सरकार गौसे आजम जीलान की जब गली से गुजर रहे थे, एक बैल आगे आगे जा रहा था। जाने के बाद अचानक मुड़ा, मुड़ने के बाद वो इंसान जैसे बात करने लगा और बात में कहता क्या है? ए बेटा अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया है कि आप जानवरों के साथ रहो। आपने इशारा सुना, माँ की बारगाह में आए। ए वो अल्लाह मोहतरमा, अब मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बेटा कहाँ जाओगे? माँ मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कि इल्म दीन सीखने के लिए अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े तो जाना। उस वक्त इल्म के दौर में अच्छा मदरसा जहां पर था बगदाद में था। सरकार गौसे आजम के दौर में बगदाद में था। इसलिए आपने कहा अम्मी जान मैं बगदाद जाना चाहता हूं। माने कहा बेटा जब से बाप का साया तुम्हारे सर से उठा है, तरबियत की जिम्मेदारी मेरे पास थी, तुम हमेशा मेरे पास रहते थे, जान छोड़ने को तो दिल नहीं करता, मगर ए बेटे तुम इल्म दीन सीखने जा रहे हो।
اے لوگوں سنو، خوش نصیبوں کو حافظ طالب، حافظ عرفان جیسے لوگ تمہارے گاؤں میں آتے ہیں، الحمدللہ آپ ان سے محبت کرتے ہو۔ عالم دین سے محبت کرنا چاہیے، عالم دین سے پیار کرنا چاہیے، حافظ قرآن سے محبت کرنا چاہیے۔ اگر ایک لقمہ بھی تم نے حافظ قرآن کو دل سے کھلایا ہے، سنیں، دل سے کھلایا ہے، بروز قیامت وہ حافظ قرآن تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ یہاں تم کسی کو سونے کا پہاڑ دے دو، وہ معاملہ نہ رہے گا۔ حافظ قرآن کو اگر ایک لقمہ کھلایا ہے، ایک وقت کھلایا ہے، تو یاد رکھو قیامت میں بھی تمہیں وہ پہچان لے گا۔ یہ آؤ دیکھو شان غوث اعظم کی دیکھ لو، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معاملہ کیا ہے یار؟ مجمع میں انتشار کیوں پیدا ہے؟ کوئی معاملہ ہے کیا؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد وعلی آلہ بارک صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسا لگتا ہے بدرے منیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدرے منیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدرے منیر آئیں گے، آج محفل میں پیرا نہ پیر آئیں گے، آج محفل میں پیرا نہ پیر آئیں گے، آج مہمان ہوں گے علی مرتضی، آج مہمان ہوں گے علی مرتضی، آج گھر میں وہ روشن ضمیر آئیں گے، آج گھر میں وہ روشن ضمیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدرے منیر آئیں گے۔ سرکار غوث اعظم 18 سال کی عمر میں آپ نے بغداد کا سفر فرمایا، اور جب بغداد میں آپ پہنچے، رات کا وقت تھا، پانی برس رہا تھا، خانقاہ بند تھی، مکتب بند تھے، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ آپ استاد گرامی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنا ایڈمیشن کرواتے، کہاں؟ مدرسہ نظامیہ میں۔ کس میں؟ مدرسہ نظامیہ۔ اور یہی مدرسہ نظامیہ ہے، جب سرکار غوث اعظم پڑھانے لگے اسی مدرسے میں، تو یہ مدرسہ نظامیہ نہیں، مدرسہ قادریہ بن گیا تھا۔ نظامیہ قادریہ کے نام سے مشہور، آج بھی مشہور ہے مدرسہ نظامیہ قادریہ، جو سرکار غوث اعظم کا ہے۔ الغرض ذات گرامی، سرکار غوث اعظم کی وہ ذات آپ نے پڑھنا شروع کیا، اس طرح سے پڑھا ہے۔ اے لوگوں سنو، غوث اعظم سے سچی محبت ہے نا تمہیں؟ سنو، سرکار غوث اعظم کا وہ تقویٰ، اللہ اکبر، وہ عبادت، اللہ اکبر۔ آپ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرمی، بارش، سردی، موسم آپ اچھے سے جانتے ہو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 40 سال تک، کتنے؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ 25 سال تک بغداد کے خندرات میں آپ بھٹکتے رہے۔ 15 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ایک ختم قرآن عشاء سے لے کر فجر سے پہلے آپ ایک قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہے۔ اس طرح سے پڑھے سرکار غوث اعظم، اس طرح سے عبادت کرے سرکار غوث اعظم۔ یہ عبادت کا عالم ہو گیا۔ جب سرکار غوث اعظم ہیں، جب پڑھانے آئے تو لوگوں کا ہجوم آنے لگا۔ جب آپ پڑھ چکے، اسی مدرسے میں پڑھانے لگے تو لوگوں کا ہجوم آنے لگا، لوگوں کی تعدادیں بڑھنے لگی۔ مدرسے کو پھر سے شہید کر کے بڑا بنوایا گیا۔ مدرسہ نظامیہ جو تھا، نظامیہ قادریہ کے نام سے رکھا گیا۔ استاد گرامی نے کہا، بیٹا عبدالقادر، اب یہ تمہارے حوالے ہے۔ الغرض اتنا کہہ کر استاد گرامی نے سونپ کر آپ واپس چلے آتے ہیں۔ اب غوث اعظم پڑھا رہے ہیں۔ ایک روز پڑھاتے پڑھاتے آپ کے شاگردوں نے کیا دیکھا کہ سرکار غوث
गौसे आजम में कमली को ओढ़े, चादर को ओढ़े हैं, चादर को ओढ़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। अचानक आपका चेहरा सुर्ख हो गया, लाल हो गया। आपने चादर से हाथ निकाला, पानी टपक रहा था। बच्चे थे, जवान थे, सबने डायरी निकाली, दिन को नोट कर लिया, टाइम को नोट कर लिया, वक्त को नोट कर लिया, तारीख को नोट कर लिया। नोट करने के बाद चंद दिनों के बाद एक काफिला आया। कि कौन सा काफिला था? कौन सा काफिला था? ताजिरों का था। ताजिर आए, आने के बाद पूछने लगे, ए बच्चों बताओ गौसे आजम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा हुजरे में। कहाँ से आए हो? हम सौदागर हैं, ताजिर का माल ले, हम सौदागर हैं, सौदागरी का माल लेकर आ रहे थे। हमारा जहाज डूबने वाला था, अनकरीब हमारा जहाज तूफान से बाहर आ गया। बच्चों ने अपनी अपनी डायरी को उठाया। डायरी को उठाने के बाद कहा, जब बताओ ये फला दिन था? हाँ फला दिन था। फला तारीख थी? हाँ फला तारीख थी। फला वक्त की बात है? हाँ फला वक्त की बात है। बच्चों ने कहा, बताओ क्या तुम्हारे साथ हुआ था? उन सौदागरों ने कहा, मामला ये हमारे साथ हुआ था कि हम सौदागरी का माल लेकर जहाज से आ रहे थे, जहाज में लदा हुआ था, तूफान की जद में हमारा जहाज आ गया था। आधा जहाज पानी में डूब चुका था, समंदर में गर्क हो चुका था। हम सब ने बैक ज़बान पुकारा था, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। ए बगदाद वाले पीर हमारी मदद फरमाइए, ए बगदाद के शहंशाह हमारी इमदाद कीजिए। इतना कहना था। ए बच्चों, जो जहाज आधा तूफान की जद में आ चुका था, आधा डूब चुका था, वो उस तूफान में एक हाथ नमूदार होता है। हमारे जहाज को तूफान से निकालकर, भंवर से निकालकर, पानी से निकालकर लाकर साहिल पर छोड़ देता है। हमारी इमदाद हो जाती है, हमारी मदद हो जाती है। हम समझ जाते हैं हमारी इमदाद करने वाला, हमारी मदद करने वाला कोई और नहीं, बगदाद का शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बगदाद का शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी है। हमें बताओ, ताजिर अगर नाम ले ले तो डूबा हुआ जहाज जो आधा डूब जाए वो साहिल पर आ जाए। हम तो गौस के दीवाने हैं, हम तो गौस के आशिक हैं, हम तो गौसे आजम के शहदाई हैं। अगर हमने नींद की कुर्बानी दी है, आज नरम नरम बिस्तर को छोड़ा है, गरम बिस्तर को छोड़कर बारगाहे गौसे आजम में आए हैं, महफिले गौसे आजम में आए हैं। हमें यकीन है हमारा गौस यहीं कहीं पर है। हमारे आंखों में वो नूर नहीं, वो प्रकाश नहीं, वो लाइट नहीं कि हम देख सके, मगर हमारा यकीन बोल रहा है। क्योंकि आशिक़े रसूल ने बहुत पहले कहा था कि कितनी प्यारी मोमिनो अज़मत है गौसे पाक की, कितनी प्यारी मोमिनो अज़मत है गौसे पाक की, कितनी प्यारी मोमिनो अज़मत है गौसे पाक की। मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ा की जात से निस्बत है गौसे पाक की, मुस्तफ़ा की जात से निस्बत है गौसे पाक की। आओ एक वाकया और सुन लो, उसके बाद सलातो सलाम, ठीक है ना? बुलंद आवाज से दरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला अलैहि सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आप यहाँ आए हैं तो इसका सिला क्या मिलेगा वो मुलाहज़ा फरमा लें। हमारे गौस है, अगर हम दिल से याद करें, या गौस आजम हमारी इमदाद कीजिए, तो कसम खुदा की गौस आजम इमदाद करते हैं। आपका खुद कौल है, अगर मैं मशरिक में रहूं, मेरा चाहने वाला मगरिब में हो, मुझे इमदाद के लिए बुलाए तो मैं मशरिक से मगरिब उसकी मदद के लिए आ जाऊं। गौसे आजम का कौल है, आप फरमाते हैं कि जब तक मैं न चाहूं कोई भी बंदा मेरा नाम तक नहीं ले सकता है। तो पता चला है कि गौसे आजम ने आपको चाहा है, आपको अपनी महफिल में बुलाया है, तब आए हैं आप।
किसी के बुलाने से नहीं, गौसे आजम के बुलाने से महफिल में आए हैं। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि शेर के जबड़े में मेरा आशिक चला जाए, शेर के जबड़े में मेरा आशिक चला जाए और वहां से अगर मुझे पुकार ले तो मैं उसकी मदद फरमा दूंगा, शेर अपना जबड़ा नहीं बंद कर पाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम है हमारे। आओ देखो, गौसे आजम का एक चाहने वाला था, जिसका मुल्क यमन का रहने वाला था, जिसका नाम यूसुफ सौदागर था। कह दो सुभान अल्लाह। यूसुफ सौदागर पूरा साल कमाता, पूरे साल कमाता और जो कमाई बचती 11वीं शरीफ का दिन आता, गौसे आजम के नाम की महफिल सजाता, गौसे आजम के नाम का लंगर चढ़वाता और पूरे साल की कमाई एक दिन 11वीं शरीफ में लगा देता। सुभान अल्लाह। पूरा साल कमाता। उसके 4 बेटे थे। पूरा साल मेहनत करता, जो अपनी मेहनत का रहता उसे रखते जाता। क्यों? गौसे आजम का लंगर लुटाना है, गौसे आजम की फातिया दिलानी है, गौसे आजम का नियाज करना है, गौसे आजम के बज़्म सजाना है, गौसे आजम की मिलाद रचाना है। पूरा साल कमाता और जितना पैसा मिलता एक दिन 11वीं शरीफ मनाकर गौसे आजम के नाम पर पूरा साल का पैसा कुर्बान कर देता। अलगरज जाते गिरामी वो वक्त आ गया यूसुफ सौदागर का, जो सब पर आना है। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत के तहत हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। 11वीं शरीफ की पहली तारीख थी। उसने अपने 4 बेटों को बुलाया, बेटो इधर आओ। 4 बेटे आ गए, वफादार बेटे थे, लायक बेटे थे, 4 आ गए। जी वालिद गिरामी क्या हुक्म है आपको? यूसुफ सौदागर फरमाते हैं, ए बेटा सुनो, ऐसा लग रहा है कि गौसे आजम की 11वीं शरीफ मैं नहीं कर पाऊंगा। आंखों से आंसू गिरने लगे। 4 जवान बेटे सामने हैं, ज़ारो कतार रोने लगे। यूसुफ सौदागर कहते हैं, ए बेटो ऐसा लग रहा है जबकि गौसे आजम की 11वीं में मैं शरीक नहीं हो पाऊंगा। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें इंतकाल का कुछ आगम मिल जाया करता है, जान जाया करते बता देते हैं कि फला दिन से फला दिन मैं जाने वाला हूँ, दुनिया को छोड़ने वाला हूँ। यूसुफ सौदागर कहते मेरे बच्चों, अब की ऐसा लग रहा है कि 11वीं न कर पाऊंगा, मगर ए मेरे लख्त जिगरो, अगर 11वीं शरीफ आ जाए, उसी दिन मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे जनाजे को एक कमरे में रख देना, मेरी मैयत को एक कमरे में रख देना, मगर खबरदार खबरदार किसी को मत बताना मेरे घर से उसी तरह जिस तरह मैं गौसे आजम का लंगर लुटाता हूँ, सबको गौसे आजम का लंगर खिला देना, मगर मेरे मौत की खबर न देना। कोई भी मेरे दरवाजे से मायूस होकर नहीं जाना चाहिए, कोई भी गौसे आजम का लंगर खाए बगैर मेरे घर से रुसवा होकर न जाए, कोई भी रूट कर न जाए, वरना बरोज़े क़यामत मुस्तफा के सामने ए बेटो मैं तुमसे सवाल करूंगा, तुम्हें जवाब देना होगा। वसीयत है मेरी। यूसुफ सौदागर ने अपनी बीवी को बुलाया, बीवी को बुलाने के बाद सर पर हाथ को फेरा, हाथ को फेरने के बाद कहा, मेरी शरीक हयात, ए मेरी ज़ौजा, ए मेरी बीवी, मैं वसीयत करता हूँ जिस शान से अभी तक मैंने गौसे आजम की 11वीं शरीफ मनाई है, लोगों को लंगर खिलाया है, कोई हमारे यहाँ से भूखा नहीं गया है, कोई भी हमारे यहाँ से रोता नहीं गया है, ए बीबी वसीयत करता हूँ तुम भी ऐसे करना, नहीं वरना बरोज़े क़यामत मुस्तफा के सामने मैं सवाल करूंगा, तुमको जवाब देना होगा। बच्चे दहाड़े मार कर रोने लगे, इसलिए कि बाबा ने कहा है कि चंद दिन का मेहमान हूँ। जवान बेटे थे, कैसे बर्दाश्त करते, ज़ारो कतार रो रहे हैं। यूसुफ सौदागर बेटों को समझाते हैं, ए बेटो रो नहीं, ए बेटो गमगीन न हो, अब तो वो वक्त आया है कि मेरा इंतकाल होगा, जिसमें से रूह निकलेगी, कब्र में जाऊंगा, जब मैं कब्र में पहुंचूंगा तभी तो मुस्तफा का दीदार होगा, तभी तो मुस्तफा का दीदार होगा। अलगरज तारीख बढ़ती रही, दिन बढ़ता रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कल 11वीं शरीफ है, आज 10वीं शब लग चुकी है। यूसुफ सौदागर अपने फिर 4 बेटों को बुलाते हैं, अपनी बीवी को बुलाते हैं, निगाहें बांध कर देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। अब सबको मालूम है सुबह 11वीं शरीफ है, अलगरज ऐलान हो चुका है, हर आदमी जान चुका है, हर आशिक कह रहा है
चलो कल यूसुफ सौदागर के यहाँ लंगर खाने चलना है। गौसे आजम का लंगर बटने वाला है, गौसे आजम का लंगर लुटाने वाले हैं यूसुफ सौदागर। सबको मालूम है, सब जानते हैं, खुशी मना रहे हैं। रात का आधा हिस्सा बीता था कि यूसुफ सौदागर के जिस्म से रूह परवाज कर जाती है। यूसुफ सौदागर के जिस्म से रूह परवाज करना था। चारों बेटे ज़ारो कतार रोने लगते हैं, बीबी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। बेटे कहते बाबा अभी तक तो आप 11वीं शरीफ करवाते थे, बाबा आप हुक्म करते थे, हम काम करते थे। बाबा बताइए न सही अब आपके बेटों को रास्ता कौन बताएगा? बाबा बताइए न सही लंगर किस तरह से बनाना है ये कौन बताएगा? बाबा किस तरह से काम को करना है ये कौन बताएगा? बाबा अब आपके बेटों को सहारा कौन देगा? माँ की तरफ बच्चों की नजर जाती है, चारों बच्चे माँ को घेर लेते हैं, घेरने के बाद गले से लगा लेते हैं। ए अम्मी आप रोइए नहीं, आप रोएंगी आपकी तबीयत खराब होगी। ए अम्मी अगर बाबा रहते थे तो बाबा काम बताते थे, बाबा रहते थे तो बाबा ढारस बंधाते थे, बाबा रहते थे तो बाबा रास्ता दिखाते थे। बाबा के बाद अब अम्मी आप बताइए, आप अपने बेटों को हुक्म दीजिए। बताओ सुबह गौसे आजम का लंगर बनने वाला है, सुबह गौसे आजम का लंगर यहीं से लूटने वाला है। गौसे आजम के आशिक यूसुफ सौदागर के घर आने वाले हैं, गौसे आजम के चाहने वाले यूसुफ सौदागर के घर आने वाले हैं। अब अम्मी जान आप बताइए हम क्या करें? अम्मी आप रोइएगा नहीं, इसलिए कि आप रोएंगी आपकी तबीयत खराब होगी, आप रोएंगी आप पर गुलूदगी आएगी, आप रोएंगी आप पर नींद का गलबा तारी होगा। ए अम्मी आप रोइए नहीं, सब्र कीजिए। अगर आप यूसुफ सौदागर की बीवी हैं तो हम यूसुफ सौदागर के बच्चे हैं। ए अम्मी रोइए नहीं, बाप की जुदाई का गम अगर हमारे अंदर है, शौहर की जुदाई का गम आपके अंदर है। ए अम्मी रोइए नहीं। बच्चों ने माँ को तसल्ली तसफ्फी दी, बच्चों ने माँ को ढारस बंधाना शुरू कर दिया, बच्चों ने माँ को चुप कराना शुरू कर दिया। अलगरज माँ को भुलाते भुलाते माँ को भुलाते भुलाते माँ को भुलाते भुलाते उस मकाम पर पहुंच गए। अम्मी जान अब हुक्म दीजिए, दूसरा पहर भी बीत गया है, लंगर गौसे आजम का लंगर गौसे आजम का हमारे घर से लूटेगा, देख गौसे आजम की हमारे घर में चढ़ेगी, हर गौसे आजम का चाहने वाला हमारा घर आएगा। अम्मी बताइए क्या करना है? फला काम करना, फला काम करना, फला काम करना है। ए अम्मी खबरदार खबरदार आप रोइएगा नहीं, इसलिए कि आपके हौसले से हमारा हौसला है। वालिद गिरामी की वसीयत है कि आपके इंतकाल की खबर किसी को न दी जाए, आपके जनाजे की खबर किसी को न बताई जाए। माँ ने कहा बेटो तुम ठीक कहती हो, बेटो तुम ठीक कहते हो। अलगरज चारों बेटों ने अपने बाप के लाश को उठाया, जनाजे को उठाया, एक कमरे में ले गए, एक चारपाई में रख दिया, रखने के बाद सफेद चादर डाल दी, डालने के बाद दरवाजे को बंद किया, कुंडी को लगाया, ताले को मारा, माले के मारने के बाद चाबी करीब में रख दिया, क्योंकि चार बेटे थे, चारों को मालूम होना चाहिए कि चाबी किसके पास है। माँ को भी मालूम होना चाहिए चाबी किसके पास है। करीब में रख दिया कि सब लोग जान ले। अलगरज बेटे आए, अब काम शुरू करना, काम में लग जाते हैं। माँ बताती जाती है, बेटे करते जा रहे हैं, माँ रास्ता बता रही है, बेटे उस पर चलकर दिखा रहे हैं, माँ इशारा कर रही है, बेटे उस हुक्म को बजा आते हैं। अलगरज वो वक्त आ गया कि जैसे ही सुबह की सफेदी नमूदार होती है, आसमान पर सूरज किरणों को बिखेरता है, पूरे दुनिया में रोशनी फैलती है, हर तरफ से आवाज आ रही है, ए आशिको चलो चलो, ए आशिको चलो चलो, ए गौसे आजम के चाहने वालों चलो चलो, ए गौसे आजम के दीवानों चलो चलो। क्या कहाँ चलो? यूसुफ सौदागर के घर चलो, गौसे आजम का लंगर लूटने वाला। सब आने लगे, धीरे धीरे सब आने लगे। इधर इंतजाम एहतमाम हो गया, खाना पक गया, सब जब पूरी तरह से सब लोग आ गए, बैठ गए, सबके सामने प्लेट को लगा दिया जाता है, खाने को उतार दिया जाता है। आज का माहौल नहीं, पहले का माहौल था। खाना पहले जब सबके सामने आ जाए, सबके प्लेट में उतर जाए, जब तक घर वाला इजाजत न दे कोई नहीं खाता था। पहले का दौर था। अब तो इतनी फुर्सत नहीं, आए रोड पर गाड़ी खड़ी की, कुर्सी खाली है तो ठीक है, नहीं पीछे वाले देख लेते तो चावल जर्दा किसके पास है, वही जल्दी उठने वाला है, फौरन कुर्सी पर कब्जा। वो खा नहीं पाता, उसकी कुर्सी पकड़ी तो फौरन निकाला, टेंट में हाथ पोछा, गया 1 2 3। पहले का दौर ऐसा था
कि जब तक सब लोग आ जाएं, दस्तरखान बिछ जाए, बैठ जाए, प्लेट चल जाए, प्लेट में सबके सामने शोरबा हो, कुछ भी हो, जब उतर जाए और जब तक के घर वाला ने कहे कि आप शुरू कीजिए, जब तक कोई खाना नहीं खाता था। अब वो वक्त आ गया, तमाम लोग जमा हो गए, बैठ गए दस्तरखान पर। बैठने के बाद सबके सामने प्लेट है, लंगरे गौसे आजम सबके प्लेट में रख दिया गया। चारों बेटे हैं, जिस तरह ये टेंट के पाए देख रहे हो, एक एक कोना पकड़ के चारों बेटे खड़े हो गए, इजाजत दे दिया, ये लोगों गौसे आजम का लंगर तनाउल फरमाइए, शुरू कीजिए, खाइए। अलगरज सब खाने में जुट गए, सब खाना खाने लगे, सब गौसे आजम का लंगर खा रहे हैं, सब गौसे आजम के लंगर को खा खा कर गौसे आजम के नारे बुलंद कर रहे हैं। पर उसी मजमे में, उसी जम्मे गफीर में, उसी भीड़ में एक ऐसा शख्स था जिसके बाल बिखरे हुए थे, जिसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर नकाब की पट्टी थी, फटे पोशीदा कपड़े थे। वो बुजुर्ग बैठे हुए थे, आवाज देता है, आवाज देते हैं बुजुर्ग इधर आओ। यूसुफ सौदागर का बेटा आया, वो आपने फरमाया जाओ तीनों भाइयों को बुला कर लाओ। तीनों भाइयों को बुलाकर यूसुफ सौदागर के चारों बेटे जब आपके पास आ गए, आप फरमाते ए बच्चों ये बताओ कि इजाजत किसने दी है? बच्चों ने कहा हमने दिया है। तो वो बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, ए बेटो तुम्हें मालूम नहीं, हर साल लंगरे गौसे आजम खाने के लिए यूसुफ सौदागर इजाजत देता था। ए बच्चों उस वक्त तक मैं न खाऊंगा, उस वक्त तक लंगरे गौसे आजम को हाथ न लगाऊंगा जब तक कि यूसुफ सौदागर खुद आकर इजाजत न दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और इसका दामन मसलक आला हजरत अंजुमन फिदाए मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना कहना था, बच्चों के दिल में बाप का गम था, बच्चों के सीने में बाप के बिछड़ने का दर्द था। चारों बेटों ने कहा ए बाबा आप खा लीजिए, ए बाबा आप खा लीजिए, आप जिद न कीजिए, आप लंगरे गौसे आजम तनावुल फरमाइए। बुजुर्ग ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा जब इजाजत यूसुफ सौदागर देता था तो आज भी वही देगा तब मैं खाऊंगा। अलगरज बच्चों ने कहा बाबा आप न तड़पाइए, इसलिए कि बाप की वसीयत थी हमारे दरवाजे से कोई भी नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। बच्चों को आपने यूसुफ सौदागर ने वसीयत की थी, ए बाबा खा लीजिए। तो बुजुर्ग फरमाते हैं ए बेटा अब राज से पर्दा तुम उठाओगे कि मैं उठा दूं? सस्पेंस को ओपन तुम करोगे कि मैं कर दूं? बातिन को जाहिर तुम करोगे कि मैं कर दूं? ए बेटा बात तुम अपने बाप की बताओगे कि मैं बता दूं? अपने बाप की बात तुम बताओगे कि मैं बता दूं? चारों बेटे रोने लगे, बाबा ऐसा मत कीजिए, मेरे बाप की वसीयत थी कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए, 11वीं शरीफ का दिन हो तो किसी को मेरे मौत की खबर न देना, सबको लंगरे गौसे आजम खिला देना, उसके बाद बताना। ए बाबा ऐसा मत कीजिए। आप फरमाते मैं तेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। चलिए बाबा आप चलिए अंदर। आप दाखिल होते हैं, चारों बेटे जाते, अम्मी एक बुजुर्ग है, सब लोग तो लंगरे गौसे आजम खा रहे हैं, सब लंगरे गौसे आजम तनावुल कर रहे हैं। एक बुजुर्ग है जो नहीं खा रहे हैं, अम्मी वो हर बात को जानते हैं, ऐसा लग रहा है वो बुजुर्ग सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। अलगरज इतना कहना था। माँ ने कहा बेटा बुजुर्ग कहाँ है? बुजुर्ग फरमाते हैं ए यूसुफ सौदागर की बीवी रोने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मुझे मिलने दे यूसुफ सौदागर से। अगर तू मुझे मिलने देगी तो मैं तुझसे मिला दूंगा, मैं तुझसे मिला दूंगा। बच्चे कहते बाबा आओ। अलगरज दरवाजे के ताले को खोला गया, कुंडी को खोला गया, दरवाजा खोला गया। बुजुर्ग जाते हैं, जाने के बाद फरमाते हैं वाह यूसुफ सौदागर ये क्या मामला है? दावत तो तुमने दे दी है, हमेशा इजाजत तुम देते थे, आज जब खाने का वक्त आ गया तो तुम्हारे बेटे इजाजत दे रहे हैं। याद रखो मैं खाना नहीं खाऊंगा, याद रखो मैं लंगर गौसे आजम नहीं खाऊंगा। कब तक? जब तक कि तुम इजाजत ना दोगे। आप फरमाते हैं कुम
इज़्नी, उठ मेरे हुक्म से, इतना फरमाना था। यूसुफ सौदागर जो कई घंटे पहले इंतकाल कर चुका था, सरकार गौसे आजम की करामत से जिंदा होकर कहते या गौस अल मदद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अंजुमन फ़िदा मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम का नाम लेता हुआ यूसुफ सौदागर उठता है। अब बताओ क्या नाम है जमीन का? डोमा पारा। ए डोमा पारा वालों बताओ, तुमने वाक़ये को सुना है? अब सच सच दिल पर हाथ रखकर बताना कितने पावरफुल हैं हमारे गौस, कितने पावर वाले हैं हमारे गौस। पता चला कि हम जिनके महफिल में बैठे हैं वो हमारी इमदाद करते हैं। अलगरज जैसे ही यूसुफ सौदागर उठे, या गौस अल मदद का नारा बुलंद किया और वो बुजुर्ग चलने लगे, चारों बेटों ने कदम को पकड़ लिया। कह दो सुभान अल्लाह। चारों बेटों ने कदम को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहते हैं हम पर अता करने वाले, हम पर करम करने वाले, आपके सहारे से मेरे वालिद को दोबारा जिंदगी मिली है, हम पर अता करने वाले, हमारी किस्मत को बुलंद करने वाले, आप बताएं तो सही, अगर जमाने ने पूछ लिया कि यूसुफ सौदागर को दोबारा जिंदगी कैसे मिली है तो हम क्या जवाब देंगे? इतना कहना था। जब बुजुर्ग आए थे, नकाब की पट्टी को चेहरे से पलट देते हैं। आप फरमाते हैं ए बच्चों, मैं कोई और नहीं जिसकी पूरी जिंदगी तेरा बाप यूसुफ सौदागर 11वीं शरीफ मनाता रहा, मैं वही 11 वाला पीर गौसे आजम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वही 11 वाला पीर गौसे आजम हूँ। जरा सोचो कि जब जब आशिक ने कहीं से भी आवाज दी है, जब जब किसी ने, किसी दिल जले ने गौसे आजम की बारगाह में सदा लगाई है, कभी भी किसी ने फरियाद की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना ईमान है कि सरकार गौसे आजम ने उसकी इमदाद फरमाई है। सरकार गौसे आजम ने उसकी इमदाद फरमाई है। ए डोमा पारा वालों, तुमने गौसे आजम का ये जलसा सजाकर बता दिया है कि ये दुनिया के ठेकेदारों, तुम दुनिया के ठेकेदार होगे जो दुनियावी महफिल सजाते हो। हम गुलामाने गौसे आजम हैं, हम गौस की महफिल सजाते हैं। मालिक मौला परवरदिगार आलम, अगर मुझसे कोई बोलने में लफ्जन, सहवन, कसदन कोई गलती हो गई हो, अलल ऐलान तमाम अहले मिंबर को शाहिद बनाकर तेरे तमाम